Okay, welcome back students to my channel. Thank you for clicking. So today we are going to start chapter 2 quadratic equation practice set 2.4. So here the first question says compare the given quadratic equation in the general form and write value of a, b, c. So general form, what does it mean? General form. सो जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, एक जो इक्वेशन इस इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है ओके, ये कोएफिशिएंट को ए बी सी में ये करना है. देखो इसका वैल्यू लिखना है. फॉर एग्जांपल आई हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए. सो यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं, right? There is no coefficient, but in algebra when there is no coefficient we assume it as 1. So here first of all you have to write that by comparing equation we get, so a का value, what is value of a? Here it is 1. So value of a is 1. So b, what is value of b? So यहाँ पे देखो ये नंबर -7. So b. And then c, what is value of c? ये +5. Only you have to see that equation is in standard form. ये जो equation है वो standard form में place है या नहीं. Standard form का मतलब क्या हुआ? The first power should be square, then single power, and then no variables. So 2, 1 and 0, no variable. So this is standard form. When you see second question, this equation is not in standard form. So first step will be to make this equation in standard form. So first let's make this equation in standard form. So here 2m square, so it is okay, 2m square. So this 5m we will bring it toward left hand side. ये जो equal to होता है ना, so equal to this side is always right hand side, हमारा right hand side, and this side is always left hand side. So whenever any number or sign change its place, it becomes opposite. तो अभी ये जो 5m है वो पॉजिटिव में, तो व्हेन आई विल ब्रिंग इट ओवर दिस साइड, यहाँ पे जब हम उसको लेके आएंगे इट विल बिकम माइनस. सो इट विल बिकम -5m. एंड नाउ आफ्टर दिस -5 will also come this side. So now it is minus. When it will come toward this side, it will become plus. Okay? So now it is in standard form. 2, 1 and 0. So पहला वेरिएबल स्क्वायर में है, फिर नो वेरिएबल और फिर वेरिएबल ही नहीं है. सो व्हाट वी विल राइट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, इट इज ओके इफ यू डू नॉट राइट दिस लाइन. ये लाइन नहीं भी लिखोगे चलेगा. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वी गेट ए, वैल्यू ऑफ ए क्या हुआ 2. Then value of b is what? -5. Sign is very important. Okay, -5. And then value of c is 5. +5 no. So plus नहीं भी दिखाएंगे तो चलता है because every number is positive. Now let's go to third sums. So third sums again it is not in standard form. So first of all let's make it in standard form. So y square, okay, ये जो 7y है वो right hand side में, so let's bring it in left hand side. So right hand side it is in positive, वो positive में है तो उसको left hand side में लाते वक्त negative हो गया. अब ये square हुआ, ये single हुआ. अब उसके बाद जो 0 वाला है वो तो दिया नहीं है, so we will take +0. So see for 3 terms 1, 2, 3 और ये फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन. सो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हो गया. सो बाय कंपेयरिंग
Okay, by comparing equation we get, so a equals to 1, b equals to -7 and c equals to, यहाँ पे c दिया नहीं था, we have taken, so it is 0. Okay, I hope you all have understood. Now let's go to second sub questions. Okay, so second sub question is really interesting. The heading says solve the following quadratic equation by using formula method. Now what is formula method? Now see, formula method in your textbook you will get this formula method in page number 40. They have explained in your textbook in page number 40. So यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो एक वैल्यू ढूंढना रहता है, जो x का वैल्यू ढूंढना रहता है. सो यह हमने जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में a, b और c ढूंढना सीखा. ओके, सो इन दिस a, b एंड c, सो उससे ये फॉर्मूला मेथड क्या होता है, माइनस b. ओके, माइनस b एंड दिस प्लस एंड माइनस साइन. प्लस एंड माइनस क्यों? बिकॉज ये अल्फा और बीटा हमको एक बार प्लस में ढूंढना रहता है, एक बार माइनस में ढूंढना रहता है. सो हियर एट अ वंस दे आर राइटिंग प्लस एंड माइनस. अब मेन फॉर्मूला देखो, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी अपॉन 2a. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. ये फॉर्मूला देख के डर मत जाओ या कंफ्यूज मत हो जाओ. व्हेन वी विल सॉल्व द सम यू विल फाइंड इट रियली इजी. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस स्लोली इंटरेस्टिंग वे में करना है. लेट्स सॉल्व वन सम्स, देन वी विल कम टू नो हाउ टू सॉल्व दिस सम्स. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो वो ये जो अब हम कर रहे थे, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. सो हियर कंपेयरिंग इक्वेशन वी गेट a यहाँ पे क्या है 1. ओके, एंड देन b इज व्हाट 6 एंड देन c इज व्हाट 5. सो a, b एंड c वी गॉट हियर. नाउ व्हाट आफ्टर दिस. अब देखो ये जो फॉर्मूला मेथड है, इसमें बस ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस. सो हियर व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट, wait, okay, hope now it is clear. Now what you will write, you will write square root of b square minus 4ac. okay, ये जो पूरे फॉर्मूला में से ये वाला पार्ट है उसको कर रहे हैं. सो अब b स्क्वायर, सो b का वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला में ही है, देन इंटू 4 इंटू a क्या है 1, देन इंटू c क्या है 5 एंड देन स्क्वायर रूट. ओके, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू. Now 6 6 are 36 minus 4 1s are 4, 4 5s are 20. Okay, so 36 minus 20 is 16. Okay, तो रूट 16 का वैल्यू क्या मिला 4. Okay, so that means ये 16 का वैल्यू मिला 4. ये जो पूरा इक्वेशन है, ये इसका वैल्यू क्या मिला 4. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम ये फॉर्मूला प्लेस करेंगे. ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे प्लेस करेंगे. सो इट विल बी लाइक, अब हम लिखेंगे दैट x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a. ओके, सो नाउ यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला का ही उसको लेना ही पड़ेगा. b क्या था 6 ले लिया, देन प्लस एंड माइनस
ये भी फॉर्मूला हमें लेना पड़ेगा। और ये पार्ट हमने यहाँ सॉल्व किया, क्या मिला 4, सो वी विल राइट 4 देन अपॉन 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए, तो 2 लेंगे और ए का वैल्यू क्या है 1, सो दैट मीन्स 2 इंटू 1, सो हियर वी गेट, अब देखो इसको हम 2 फॉर्म में करेंगे, ये प्लस और माइनस है ना, तो 2 वे में हो जाएगा। तो 2 वे में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वी विल राइट x इक्वल्स टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2, और x इक्वल्स टू -6, अब हमने पहले प्लस लिया तो यार वी विल टेक -4 अपॉन 2। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद ना प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस है, देखो ऐसा -6 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 2 ना, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, एंड देन बिगर नंबर 6 उसका साइन माइनस, सो हियर वी गेट x इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 4 10, बट ग्रेटर नंबर क्या है 6, उसका साइन माइनस अपॉन 2। अब ना या वी कैन सी दैट आई कैन डिवाइड दिस, ये डिवाइड हो सकता है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, सो फाइनली आंसर क्या मिला, therefore x equals to -1 and x equals to -5. Okay, so therefore solution is -1 and -5 are the roots of the given quadratic equation. Okay, I hope you all have understood. Please go through this video slowly. वीडियो को नॉर्मल से थोड़ा स्लो में सेलेक्ट करो, और स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू विल गो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ये इतना टफ नहीं है जितना दिख रहा है, and then you will be able to solve all these sums from this practice set. Okay, let's do the second sum. So here in second sums I have already written few steps to save the time. So यहाँ पे by comparing this we get a equals to 1 b -3 and c -2. So पहले तो ये जो छोटा सा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। So b स्क्वायर, so यहाँ पे b है -3, तो उसको स्क्वायर, then 4 into a into c, so a is 1 and c is -2. So when I solve this further, 3 3s are 9, minus into minus plus, okay, ये plus 9 हो गया। now 4 1s are 4, 4 2s are 8, okay, 4 1s are 4, 4 2s are 8, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते तो साइन बन जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस, so 4 2s are 8. So now 9 plus 8 is equals to how much? Yes, 17. So root 17. So root 17 जो है इसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, बिकॉज रूट 17 का तो स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर रूट 17. सो नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? प्लीज रिपीट बाइंड मी. माइनस बी देन प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट वी विल डू, हम हमारे वैल्यूज को लगाएंगे. नाउ माइनस बी. सो माइनस बी क्या है? ये माइनस फॉर्मूला का है, बट बी का वैल्यू भी माइनस में ही है, सो वी विल टेक इट इन ब्रैकेट. ओके, नाउ ये प्लस और माइनस. ओके, सो और ये जो है अभी अभी रूट 17 वी हैड फाइंड आउट द वैल्यू. देन 2 इंटू ए. ए इज हाउ मच? 1.
तब फाइनल माइनस इंटू माइनस प्लस, अभी अभी मैंने बताया था, देन ये 17/2। तो ये प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इसको 2 वे में लिखना है, दैट x इक्वल्स टू 3 + 7√17/2 और x इक्वल्स टू 3 - √17/2। अब देखो बिकॉज यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाया, सो यही फाइनल आंसर है इसका। ओके, देयर इज नथिंग दैट वी कैन प्लस और माइनस और डिवाइड इन दिस, सो देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या हुआ, दैट 3 + √17/2 and 3 - √17/2 are the roots of the given quadratic equation. Okay, I hope now you all are finding it easy. Let's solve the third sums. It is also same pattern. So now third sums, first step is to comparing and finding out A, B, C. So A equals to 3, B equals to 2 and C is negative -7. And then इसके बाद क्या करना है, ये B² - 4AC. Okay, so here B² क्या है, 2² ना, 2 - 4 into A क्या है, 3 into C is what, -7. Now after this 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are, yes please anyone, 12 7s are 84. और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 12 7s are 84. सो ये फाइनली बन गया 88. ओके, बिकॉज ये 88 बन गया, सो 88 को जब हम रूट निकालेंगे तो ये 88 11 का हो जाएगा। देन सी ये जो 88 है इसको हम क्या करेंगे, 88 इसका जब हम स्क्वायर 2 4s are 2 4s are, ओके, एंड देन आफ्टर दिस इसको हम ऐसे, नाउ 2 2s are 2 2s are, ओके, एंड देन तो ये 2 निकल गया, ठीक है। अब आगे अगर हम करेंगे तो 2 11s आया और 11 1s आया, तो दैट मीन्स ये पार्ट का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ओके, ये 2 × 2 मीन्स अगर रूट के अंदर मैं इसको रखती हूँ 2 × 2 × 2 × 11, तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में से 2 की जोड़ी निकलती है, तो ये बाहर आ गया, बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा, 2 11s are 22, तो दैट मीन्स 2 √22, ये 88 का आंसर है। सो वी गॉट 2 √22, दैट मीन्स ये फाइनल आंसर क्या हुआ, इसका हुआ। सो जब हम अब फॉर्मूला लिखेंगे, दैट x इक्वल्स टू -b प्लस एंड माइनस एंड देन b² - 4ac upon 2 into a, so we have to put the values. So x equals to minus and value of b, value of b क्या है, 2, so we will write 2, then plus and minus स्क्वायर, ये जो है ये टर्म का वैल्यू ये मिला था, तो 2 √22 upon 2 into a is what, 3, so 3. तो now finally when we solve it, तो ये हो गया -2 और ये एज इट इज, एंड यहाँ पे हो गया 2 into, now 2 3s are 6, बट ना यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, इसको 2 3s लिखेंगे। वाई, बिकॉज देयर इज अ ट्रिक। अभी देखो ये 2 और ये 2 इस इक्वेशन में है ना, तो हम इसको ना कॉमन ले लेंगे, कि क्या करेंगे, ये 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचा, -1 ना, 2 1s are 2 -1,
देन प्लस एंड माइनस, ये 2 भी बाहर ही आ गया, क्यों? क्योंकि ये तो होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है होल ब्रैकेट को, तो 2 1 जा 2, और फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2, तो ये जो 2 है वो हमने बाहर कॉमन में ले लिया। वाई क्यों ले लिया कॉमन? बिकॉज नीचे भी एक 2 है वो, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 22 अपॉन 3। सो ये वैल्यूज के साथ, एंड नाउ so here the final answer will be -1 plus square root 22 upon 3, or x equals to -1 minus plus की जगह minus square root 22 upon 3. Okay, this is the final answer. Let's go to the next sums. Now, first of all, comparing. Okay, comparing equation. We get A. A is what? 5. B. B is what? -4. And C. C is what? -2. Okay. So, now, after this, what we will do? First, we will find out this. B square minus 4AC. So, B square is how much? -4. -4AC. करेक्ट। अभी तक हमने 2 सम्स किया, तो यू मस्ट बी क्विक इन दिस नाउ, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। 4 4 जा 16, देन 4 5 जा 20, 22 जा 40, बट नाउ यू सी माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दैट मीन्स फाइनली वी गॉट 56। तो इसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू हुआ वो हुआ 56। सो नाउ व्हाट वी विल डू, okay, so इसका कंटिन्यूटी यहाँ पे करते हैं। सो नाउ फॉर्मूला, ये m का है तो m ले लेते, तो व्हाट डज द फॉर्मूला से? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4 into AC upon 2 into A. So that means now minus B is already -4, and then please do not get confused in this minus. ये फॉर्मूला का माइनस है और ये B के वैल्यू में माइनस है। ओके, नाउ हियर हमने ये वैल्यू ढूंढा था, व्हाट इज इट इज 56 अपॉन 2 into A. A is how much? 5. ओके, सो अब फाइनली हम क्या करेंगे? ये जो 56 है, इस 56 को हम पहले तो ये करेंगे फैक्टराइज। 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ये तो हो गया फैक्टराइज। तो जब रूट के अंदर 2 into 2 into 2 into 7, so now we need a pair of 2 because it is square root. So finally we get 2 and 2 7 are 14. This is what we get. Okay, so that means 56 is equals to, now ये कैसे हो जाएगा? इसका वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, तो +4, ये प्लस एंड माइनस, हियर वी गॉट 2 स्क्वायर रूट 14 एंड हियर 2 into 5। ओके, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज अभी अभी जैसे हमने प्रीवियस सम्स किया था, यहाँ 2 कॉमन मिलेगा। ओके, नाउ हाउ वी विल गेट 2 कॉमन? ये 4 है और ये 2 है, तो 2 को अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ पे 2 बचा, 2 2 जा 4, एंड देन प्लस एंड माइनस, ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2। ओके, एंड देन डिनोमिनेटर में 2 into 5।
ओके, सो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये कैंसिल हो गया. देन 2 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट 14 अपॉन 5. तो दिस इज द फाइनल आंसर. अब हम इसको 2 पार्ट में लिखेंगे, ये प्लस और माइनस में. तो यर द आंसर विल बी लाइक m इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m equals to 2 minus root 14 upon 5. Okay, like this. I hope you all have understood. Let's go to the next sums. Now let's solve fifth sum. The fifth sum has fractional coefficient. So I have already written comparing in standard form. Now see, a is equals to 1, b is equals to 1 upon 3. And C minus 2 I have written. Now you will say why minus 2. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना पड़ेगा पहले. तो ये 2 जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करके यहाँ लाएंगे तो इट विल बिकम माइनस 2. सी लाइक दिस. इसको हम यहाँ लाएंगे तो इट विल बिकम एंड देन इक्वल टू 0. सो दैट्स वाई C इज इक्वल टू माइनस 2. एंड नाउ फर्दर, तो फर्दर हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ढूंढते हैं. सो बी स्क्वायर इज 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर. देन 4 इंटू a इज 1 एंड c इज माइनस 2. सो नाउ, सो 1 1 ज़ा तो 1 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड देन 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस. सो नाउ आफ्टर दिस, because we have to add this, so इसको rationalize करना पड़ेगा. how we do rationalize? इसके नीचे 1 है, जब कोई नंबर नहीं होता तो assume करना है 1. so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं. 1 1 ज़ा 1, 9 8 ज़ा 72 and then 9 1 ज़ा 9. so finally after adding I get 73 upon 9. तो ये जो 73 अपॉन 9 है, ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट में जाएगा. ओके, इसका जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट. सो नाउ फर्दर जब हम इसको इक्वेशंस में इनपुट करेंगे, सो व्हाट डज द फॉर्मूला से, दैट माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a. So now after this, minus b, sorry, b, value of b is 1 upon 3, 1 upon 3, then plus and minus, here we have 73 upon 9 upon 2 into a. 2 into a is 1. So now अब देखो इस चीज़ को सॉल्व करना है. 1 अपॉन 3 एंड देन प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे 9 है ना, तो 9 स्क्वायर रूट में से हट सकता है. क्यों, ये 3 3 ज़ा 9 है. ओके, 3 3 ज़ा 9 है. तो ऊपर क्या हम लिखेंगे यहाँ पे ना, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. तो ये फाइनली कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 3 और यहाँ पे सिर्फ 73 बचा. ये 1 अपॉन 3 कैसे आया, 1 का स्क्वायर निकाले और नीचे जो 9 है उसका 3 इंटू 3 रूट निकाले अपॉन 2. सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस प्लस विल बी माइनस, तो ये बन जाएगा. सी नाउ दिस इज लिटिल ट्रिकी. अब ये पार्ट क्या है, ये डिवीजन है ना. तो देखो माइनस 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 एंड स्क्वायर रूट 73. अब जो डिवाइड यहाँ है वो यहाँ पे आएगा. फिर ये क्या है, नीचे की तरफ 2 है, मीन्स 1 अपॉन, ओके, ये डिवाइड 2 हो रहा है. ठीक है, ऐसा 2 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 2. तो जब ये डिवाइड बाय 2 है, हम इसको ना रेसिप्रोकल करेंगे. 6 स्टैंडर्ड में है ये,
ओके, रेसिप्रोकल यानी डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 1/3 प्लस एंड माइनस 1/3 स्क्वायर रूट 73, ये डिवीजन को मल्टीप्लाई, तो ये जो 2 है वो अपॉन 1 ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो अभी देखो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1/3। देखो ये 3 और 3 कॉमन है, ठीक है। सो ये इसके साथ 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ओके, ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये एडिशन फॉर्म में है ना। ओके, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बिकम, देखो यहाँ पे -1 अपॉन 3 2 ज़ा 6 एंड ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73। ओके, वाई, बिकॉज हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे। ओके, सो ये फाइनल। देखो ये कैसे हुआ, ये पार्ट -1/3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वो बन जाएगा 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1/73 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसलिए 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। ओके, इसको कॉमन लेने के बाद ये मल्टीप्लाई हुआ ऐसे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कंफ्यूज नहीं हुए यहाँ पे। देन अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y का है तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 73/6 और y इक्वल्स टू -1 माइनस 73/6। Okay, now let's go to the next sums. Now 6 sums I have already done to save time, half 5x square plus 13x plus 8। तो कंपेयर करने से a is this, b 13 and c 8। so ये वैल्यू ढूंढेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 13 स्क्वायर b का वैल्यू -4 इंटू a इंटू c, सो 13 स्क्वायर हुआ 169 एंड 4 5 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16 होता है तो 160। ओके, सो ये माइनस होने के बाद बचा 9, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिला 9। तो ये जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये फाइनली बचेगा 3 3 ज़ा 9, तो 3 मिला इसका वैल्यू। ओके, सो इन शॉर्ट जब हम ये करेंगे अब दैट x इक्वल्स टू -b प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके b इज हाउ मच 13 एंड ये इसका पूरे टर्म का वैल्यू 3 मिला एंड नीचे 2 इंटू a इज हाउ मच 5, तो फाइनली आंसर क्या मिल जाता है -13 प्लस माइनस 3/2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10। तो जब हम इसको 2 वे में करेंगे, समझो ये प्लस में था और यहाँ पे माइनस में करते हैं, सो यहाँ पे ना फाइनली देखो प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया -10/10 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 16/10, तो 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा, यहाँ पे 2 का टेबल 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा, तो दो वैल्यू क्या मिला यहाँ -1 मिला। ओके, और नेक्स्ट वन क्या है -8/5। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, let's go to the last sums of this practice set. Okay, now last sums is little bit activity kind of. Yeah, see, with the help of the flow chart given below, solve the equation. इस equation को solve करना है using the formula. So compare the equation and find out a, b, c. तो ये step 1. Find the value of step 2. Write formula to solve quadratic equation. Step 3. तो जो हम अभी तक किए उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में बोला है। सो लेट्स सॉल्व। आई एम नॉट राइटिंग दिस क्वेश्चन, आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग इट। ओके, नाउ सी कंपेयरिंग। फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, कंपेयरिंग। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है x² + 2 स्क्वायर रूट 3x
प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो a इज 1, यहाँ वेरिएबल नहीं, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1. देन b इज 2 स्क्वायर रूट 3, ये जो x है उसको नहीं लेंगे. एंड देन c इज 3. तो नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ढूंढते हैं, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो हियर बी स्क्वायर क्या है हमारा, 2 स्क्वायर रूट 3, देन माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. सो 2 टू ज़ा 4, और ये रूट 3 जो है वो रूट 3 इंटू रूट 3 एक 3 बन जाएगा. रूट के अंदर है ना, तो 2, और वो भी स्क्वायर रूट है, तो 2 रूट का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो एक ही बन जाता है, तो 3. तो ये देखो ये कैसे हो गया, ऐसे हुआ, 2 इंटू 2 स्क्वायर हो रहा है, फिर इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो 2 टू ज़ा तो 4 हुआ और ये बन गया 3. सो 4 3 ज़ा 12. सो 12 माइनस 4 3 ज़ा 12. 12 minus 12 0. So that means b square minus 4ac equals to 0. यहाँ पे हमको 0 मिल गया. सो नाउ जब हम इसको स्टेप 3 फॉर्मूला में लगाते हैं, तो फॉर्मूला इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए. तो जब हम ये वैल्यूज़ को एक्चुअल में लगाते हैं तो माइनस बी, तो ये माइनस हुआ और बी क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3, एंड देन प्लस माइनस ये 0 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1. सो नाउ यहाँ पे हुआ माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, प्लस 0 का तो कुछ आएगा ही नहीं ना, और ये 2 और 2 भी कैंसिल हुआ, ठीक है, 1 जा. तो फाइनली x इक्वल्स टू माइनस रूट 3. तो यहाँ पे हमको एक ही आंसर मिला. सो क्योंकि एक ही आंसर मिला, तो द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर, यही 2 बार लिखेंगे, ओके, माइनस स्क्वायर रूट 3. Here we come to ends of our practice set for 2.4. Please do like, share and comment, and share the video with your friends. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Let's meet in next video. Bye bye. Have a great day.